questions? So what is the meaning of heckle? Heckle. You look up a dictionary. Okay? And then in the next class you will come and then you will say that I asked our teacher to tell me the meaning of a word and he heckled me. Anything else? Any other question? Jumble, J-U-M-B-L-E, and here camel, C-A-M-E-L. Yes. So B-E-L. Camel, jumble, not jumble, jumble. Okay, camel. Sound is, there is no, very hard and fast thing that it has to be something according to rule. No formula. Of course, we are trying to get some formula out of it in order to sort of get the pattern. There are some patterns, but we cannot raise a logical objection. And in this case, it is actually straightforward. Camel. Okay, camel. That is the most straightforward sound that can come out of C-A-M-E-L. So you said that live means alive, मतलब जिंदा. वो मतलब भी है. Yes. हाँ. पर sir, why we used to say live matches going on? Jinda matches. Oh, of course, yes. I mean, if the match that we are seeing on TV, if that match actually took place last night, then that match is dead by now. We are seeing something past. Okay. On the other hand, when the match is going on there, the match is alive. It is kicking. It is moving. Okay. And that you see at that same time. So that is why you call it live. So many words like that are used in a sense which is not literally exact, but the sense of it is like that. And today we will take simple words of the old families and we will exercise them only on simple present. Okay? So till now we have covered simple present, past, future, and yesterday we had some practice, some exercise on simple past, present, future, and today we will have only on simple present, and I spend more time on simple present rather than past and future. Can you tell me why? Pardon? If you communicate all background of society, then most of the things is present. No. No, that is not the reason. I am teaching you English, you see. Okay. So simple past and simple future are easy. It is present where people make mistakes for long time, because singular one form and plural another form, and that itself is a mistake which damages the English of many of our people. Okay. So that is why I give more time on simple present. Okay. So today we will start from the reverse row, please. This bat is mine. ठीक है? सेंटेंस चलेगा? ओके. एक और बना दीजिए अगले लाइन से एक सेंटेंस वर्ड लीजिए. यस. अच्छा, इनका सेंटेंस है प्रिया एंड सीमा गो फॉर ईपीपी क्लास एवरी वीकेंड. ये सेंटेंस भी ठीक है? व्हाट इज दैट? क्या करेंगे इसका? क्या किया जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भी तुम्हारे दुख के साथ दुखी हूँ. नहीं, ये सेंटेंस बना नहीं है ना, तभी हम पूछ रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं. जो आपका सेंटेंस का विषय वस्तु है वो आप हिंदी में बताइए, तो फिर हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं. नाराज हूँ, दुखी हैं, नाराज के सेंस में. I am sad with you. सैड के पहले एक एम लगा दीजिए. I am sad with you. Okay. The PNG gas line is available in IIT for home use. Good sentence? बहुत अच्छा सेंटेंस है, मिटा दीजिए. नेक्स्ट. Gas line both will be capital. G is continuous. PNG
एक्चुअली गैस का जी जो है ना वो कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं थी, उसको वो स्मॉल रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन गैस को कुछ खास सेंस में वो यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने झमेला नहीं किया, लेकिन गैस शुड बी स्मॉल लेटर एक्चुअली। आई एम सैड विथ यू, ठीक है, ओके। अगला जो लाइन है ना, 5th लाइन, उसमें से एक वर्ड लेकर उससे एक सेंटेंस बना दीजिए। नेक्स्ट, माई पेन इज ब्लैक, ठीक है, यस। इनका सेंटेंस थोड़ा देखिए, आप लोग एग्जामिन कीजिए। विराट कोहली प्लेज द मैच, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैडम, यस। So from the top line, take a word of your choice and make a sentence. Yes. So take the second line. क्योंकि जिस मैच की बात हो रही है उसके बारे में सुनने वाले को, जनता को पहले से अंदाज है, आज वाला मैच उस सेंस में। और अगर कोई एक मैच खेलने वाला होता जिसके बारे में पहले से अंदाज नहीं होता लोगों को, तब ए मैच बोला जाता। नहीं, जो मैच आज खेला जाने वाला है, स्कूल में रोज़ रोज़ जो है ना स्पोर्ट्स सीजन चल रहा है, ठीक है, 10 दिन का, तो जिस दिन बात हो रही है उस दिन का जो मैच खेलने वाला है वो विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, मैंने स्कूल के बारे में बताया था, ठीक है। तो जिस मैच की बात चल रही है, जिस मैच की चर्चा चल रही है उसको रेफर करना हुआ तो द मैच, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा सोच समझ के बताया कि ये चलेगा, क्योंकि वो जो है ना विल प्ले को ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के लिए प्लेस द मैच ये कहा जाता है। फॉर सेफ जर्नी, आप जहाँ तहाँ बीच में कैपिटल लेटर लिख डालते हैं, इससे हम लोगों को थोड़ा कष्ट होता है। सेफ का जैसे एस जो है ना वो एक्चुअली कैपिटल एस है, उसी तरह से द का टी जो है वो कैपिटल टी है। हाँ, आई ड्राइव माई बाइक वेरी फास्ट, अच्छी बात नहीं है। फॉर सेफ जर्नी इट इज़ नॉट गुड, ओके। फॉर सेफ जर्नी कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर कार के पहले इन्होंने आर्टिकल यूज़ नहीं किया है और उसकी ज़रूरत नहीं है, इस केस में ज़रूरत नहीं है, नहीं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। फॉर सेफ जर्नी कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ एक्चुअली फाइन। कह सकते थे फॉर ए सेफ जर्नी, लेकिन ये भी ठीक है, ओके। आई ड्राइव माई बाइक वेरी फास्ट, एक्चुअली बाइक को ड्राइव नहीं करते हैं, राइड। आई राइड माई बाइक वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ए वेरी स्मार्ट बॉय, ओ येस इंडीड, वी एग्री। सेंटेंस सही है, ठीक है, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, ऑल बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल इन समर। सेंटेंस ठीक है। Whether this sentence is right or not, we are sentence is right, but she is telling that we could remove all and we could start the sentence with boys. I would have done that, but this is also fine. ठीक है, next. They is not needed before football. The football. No, जरूरत नहीं है। I play cricket. I play football. I usually walk in morning. I usually walk. नहीं, walks नहीं, ये हटा दीजिए। I जो है ना, मैं और आप, हम दोनों इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आप भूलिए मत इस बात को, ठीक है। वो अकेले है, 1000 लोगों के बराबर है। I walk in, रुकिए, और भी और दूसरे ऑब्जेक्शंस हैं। I usually walk in the morning. In the morning. ठीक है, नेक्स्ट। वन के जगह पे सजेस्ट कर रहे हैं ये लोग, आप इनके विचारों से सहमत हैं? ये सही नहीं है, इनके विचार को अपना लीजिए। देयर इज ए वेरी टॉल बॉय इन आवर बास्केटबॉल टीम, वो वन नहीं होगा, ए ठीक रहेगा। हाँ, देयर इज ए वेरी टॉल बॉय इन आवर बास्केटबॉल टीम, अब सही हो गया, ठीक है। अब मिटा दीजिए।
नेक्स्ट, आई गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स, ये तो अच्छी बात है। सेंटेंस ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको तो गुड मार्क्स मिलेगा ही। कौन रहता है? कौन? क्या बताया आपने? लॉयन नहीं, लायन। लॉ नहीं, ला, लायन। ओके, जैसे आयन होता है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आयन होता है, वैसे ही लायन होता है। ठीक है, आयन के पहले एक एल लगा दीजिए। द लायन लिव्स इन द डेन। द इज रिक्वायर्ड, yeah, article is required. I would not say the is required. Article is required. हाँ, इनका सेंटेंस अब ऐसा कीजिए ना, ये डेंस है अपने बना, अब तीसरे लाइन में से किसी एक और वर्ड ले लीजिए और उससे एक और सेंटेंस इन लोगों को दे दीजिए। इनको इतना छोटा सेंटेंस आपसे मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ज़बरदस्त मोटा तगड़ा सेंटेंस मिलेगा। हाँ, इनका सेंटेंस देखते हैं, मोटा तगड़ा है। आई लाइक टू राइट ए लेटर विथ ब्लैक पेन। ओके, अच्छी बात है। सेंटेंस ठीक है, मिटा दीजिए, आपका सेंटेंस ठीक है। आई सेल ए बुक्स, नहीं 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 नहीं, हाँ ए काट दो, करेक्ट। आई सेल बुक्स, मैं किताबें बेचता हूँ, अच्छी बात है। फुल स्टॉप हटा दो और उसको लंबा करो। समीर स्टेज, यही प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। इन द होटल, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, उसको लंबा करो। आई सेल बुक्स, ई एल। समीर स्टेज इन द होटल नेक्स्ट टू मी। अच्छा, आप भी होटल में रहते हैं और वो अगले कमरे में रहता है। नेक्स्ट होटल नेक्स्ट टू मी सर, किसी बाजू वाले होटल, यानी कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं बाजू वाले होटल में रहता हूँ। चलो नेक्स्ट टू तो मी नहीं होगा ना, नेक्स्ट टू माई रूम या नेक्स्ट टू माई हाउस, वही मैं इंटरप्रेट कर रहा था। हाँ, वो भी होटल में ही रहते हैं। हाँ, वो नहीं, तब ठीक था, इस मीनिंग में वो भी ठीक था। समबडी स्टेज इन द होटल नेक्स्ट टू मी या नेक्स्ट टू माई रूम, ठीक है। देयर इज ए स्मेल ऑफ चॉकलेट केक इन द किचन। सेंटेंस ठीक है, करेक्ट, गुड, मिटा दो। नेक्स्ट। नहीं बेटा, ये एकदम जमा नहीं, बहुत सारा गड़बड़ है। गोज नहीं होगा, पहली बात। आई गो टू सेल बुक्स इन टुडे, टुडे तो हटा ही दो, रोज जाते हो तभी तो आई गो हो रहा है। इन भी हटा दो। हाँ, और गो और टू के बीच में जो गैप है ना, उसमें एक ऐसा लगाओ, ऊपर कुछ लगाते हैं। हाँ, समीर वर्क्स एज ए क्लर्क इन माय ऑफिस। हाँ, जोड़ दीजिए, इन माई ऑफिस। ठीक है, अब जमा ना, मिटा दीजिए इसको। नेक्स्ट। कहाँ जाते हो किताबें बेचने के लिए? किताबें बेचने के लिए कहाँ जाते हो? लिख दो ना। हाँ, लिखो लिखो लिखो। गो टू द मार्केट। नहीं, हमारा ठीक लिख रहे हो, मार्केट लिखो, लेकिन मार्केट के पहले टू द लगा देना। टू द, हाँ। नेक्स्ट। You take the top line, you take the second line. If in is it ink big, fit him makes pig sit. He goes to buy ink for his fountain pen. क्या शेड्यूल है जाने का? नहीं, कुछ सेंटेंसेस मैंने अभी बताया था, कुछ सेंटेंसेस जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल में जमते नहीं हैं। ये उस टाइप का एक सेंटेंस है, ठीक है। फाउंटेन पेन में इंक लेने के लिए खरीदने के लिए जो है वो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए
प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो है ना जमता है व्हेन इट इज एम्प्टी, अब जमा। ही गोज टू बाई इंक फॉर हिज फाउंटेन पेन व्हेन इट इज एम्प्टी, फाउंटेन में जब खाली हो जाता है तब जाता है, अब जम गया एकदम, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट, हाँ थर्ड लाइन, हाँ इनका सेंटेंस कुछ आपका छूट रहा है, टू स्टे फिट। आई वॉक डेली इन द पार्क टू स्टे फिट, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। आई लाइक टू गिफ्ट स्मॉल गोल्डन फिश टू माई फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे। सेंटेंस ठीक है, बर्थडेज कर देना चाहिए ना, बर्थडेज कर दीजिए। नहीं, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, नहीं चाहिए। उसके कितने सारे दोस्त हैं, सबको देता है वही। हाँ बर्थडेज कर दीजिए, देयर बर्थडेज, सबका बर्थडे तो एक दिन नहीं आएगा ना। आई लाइक टू गिफ्ट स्मॉल गोल्डन फिश टू माई फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडेज। क्वेश्चन ये है कि वो फ्रेंड्स ये गोल्डन फिश लेके करते क्या है, ठीक है, मिटा दीजिए इसको। हाँ, आई विश इफ आई कुड अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई फ्रेंड टुडे इन कानपुर। एट कानपुर ठीक है, कीजिए, एट कानपुर कीजिए। वैसे एट लखनऊ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कानपुर में तो आप अटेंड कर ही सकते हैं, खैर ठीक है। आई लाइक टू वेयर ए ब्लैक शर्ट, सेंटेंस ठीक है, ठीक है, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, आई लाइक टू डिज़ाइन हाई राइज बिल्डिंग्स ऑन, क्या है वो, एटब्स, नेम ऑफ, अच्छा आप सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना चाहते हैं, मैंने सोच रहा था कि सही में डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। आई लाइक टू डिज़ाइन, नहीं ठीक है, आई लाइक टू डिज़ाइन हाई राइज, हाई राइज के बीच में एक हाइफन लगा था क्या, ऐसे ही चलता है, ठीक है ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलाइए, ठीक है। आई केप्ट माई पेन इन द बॉक्स, ओके चलेगा। नेक्स्ट, दोनों आ जाइए। ओ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, हाँ कीप, यहाँ पर एकदम सही फिट बैठेगा। आई कीप माई पेन इन द बॉक्स, खो कैसे गया है ना, मैं हमेशा बक्से में रखता हूँ, मिटा दीजिए। उसके पहले आप हमको ये बताइए कि सारे वर्ड्स जो छोटे अक्षरों से लिखे हुए हैं, गॉड का जी कैपिटल क्यों है? नहीं, इस गॉड का मतलब क्या है? देवता, भगवान है कि देवता है? नहीं, इस गॉड का मतलब भगवान है, और अगर स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो उसका मतलब होता है देवता, ठीक है। डिफरेंस ये है कि भगवान का स्त्रीलिंग नहीं होता है और देवता का स्त्रीलिंग होता है, गॉड का स्त्रीलिंग गॉडेस होता है। और भगवान, एक ही भगवान की आप कल्पना कर सकते हैं, 8-10 नहीं। लेकिन जहाँ तक देवताओं का सवाल है, 8-10 देवता की कल्पना की जा सकती है। हमारे हिंदू शास्त्र में लाखों करोड़ों में कल्पना की गई है, उधर ग्रीक और रोमन लोगों की भी देवी देवताएं होते हैं, ठीक है। लेकिन गॉड जो भगवान है, सर्वशक्तिमान, अकेला, एकच्छत्र, उसमें कैपिटल जी यूज़ किया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। ओके, सेंटेंस बनाइए। ओ वाह, ये तो अच्छी बात है। वाई जो आपने शुरू वाला लिखा है ना, वो स्मॉल लेटर लग रहा है, और उसके बाद का जो ओ है वो ए लग रहा है। हाँ, यस। रुकिए, ये सेंटेंस ठीक है। योर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, जब सारे बालों को एक साथ इकट्ठे देख रहे हैं वो, तो हेयर सिंगल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। योर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग। द क्रेजी फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग, ठीक है। आई ड्रिंक ए कप ऑफ हॉट टी, नहीं ठीक है, नहीं, इनके सेंटेंस में कुछ जोड़ेंगे हम लोग। कब पीते हैं आप? भी सुबह पीते हैं कि शाम को पीते हैं?
मॉर्निंग दोनों टाइम? चलिए आप कुछ उसमें जोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है. I drink a cup of hot tea, but At 5 PM. At the morning नहीं लिखिएगा. in the morning. इन द मॉर्निंग एट 5 PM चलेगा. अच्छा ये क्या है? इन द मॉर्निंग लेकिन एट 5 PM. हाँ, एट एक पॉइंट टाइम पॉइंट लोकेशन के लिए है, ठीक है. और इन जो है एक बड़े रीजन के बीच में कहीं पर है, ठीक है. वी लिव इन कानपुर एंड वी स्टॉप्ड एट हैदराबाद. हम लोग यहाँ से चेन्नई जा रहे थे, रास्ते में हैदराबाद पे रुके. वी स्टॉप्ड एट हैदराबाद, ठीक है. द ट्रेन स्टॉप्स एट हैदराबाद, ओके. बट वी लिव इन कानपुर, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं कानपुर इतना बड़ा दिखता है, उसके अंदर बीच में हम लोग कहीं पर एक जगह है. नहीं, गलत है. लेकिन जाने के रास्ते में चेन्नई तक, कानपुर से चेन्नई इतना लंबा है, उस पर जो है हैदराबाद एक पॉइंट है, एक स्पॉट है, एक डॉट है. मैप में एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है, ठीक है. ओके सुमिता जी. यस करेक्ट. वहाँ पर कानपुर बड़ा और IIT के छोटा. लेकिन मैं इतने दिनों से IIT के अंदर रहता हूँ कि मुझे इन जैसा दिखाई देता है. ओके, आई लाइक टू ड्रिंक हॉट टी इन द मॉर्निंग. यस, आप भी आ जाइए. इट इज़ कोल्ड टुडे. सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन एक तगड़ा सा मोटा बड़ा सा सेंटेंस बना के इनको दिखाइए. आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय इन दिस क्लास. ओके वी एग्री. उसको मिटा दीजिए जल्दी से. निमिष. His son wants to go on the world tour. Wants to, हाँ to. ठीक है, मिटा दे. I think that is used. For मुझे भी लग रहा था for ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन on the world tour इस तरीके से यूज़ करते हैं लोग. I go to the market for buying vegetables. Perfect. मिटा दीजिए इसको. ओके आज हम लोग प्रैक्टिस यहीं तक रखेंगे. एंड बिफोर today's classwork, let me announce some agenda for the next class. For the next class, each of you plan a topic to talk about. Okay, so we'll have a speaking session, but unlike the first class, in this Saturday's class, I will not give you the topic. All of you bring your own topic. For example, some of you want a particular change in the society, and here you have found 30 people, so you want to propose that come on my friends, you see this thing happens like this and it is not good. We want a society like this, and you want to propose something. So talk about that. Some of you have something interesting to tell people. For example, when you went to Haridwar, you saw an interesting thing. About that you plan. Okay. Some of you have something else in mind. So whatever is your interesting favorite topic in which you think that if you tell that to 20 people, it will be interesting, it will be nice, and they will be benefited, or society will be benefited, or you will be benefited. Okay, so like that, plan a topic for 3 minutes, and 3 minutes, so you don't say only 3 minutes, it's nothing. Actually 3 minutes is a long time if you have to speak. Okay, so plan for 3 minutes, but even if you speak 2 minutes, that is also fine, because after you finish speaking on your topic, we will ask for clarifications, we will have some more questions which we will ask. Okay, so you will answer, you will clarify, and so on. Okay.